friends. We are live now to discuss about insurance and you, and with that too, with an actuary. We're asking her to join us. Ruchita, hi, we're seeing you live. We just asked you to join us. Hi, Ruchita. Yes, hi Yes, everyone. hi everyone. So nice to see you. Same here. Same here. Friends, let us straight dive into our program today. And we are speaking to Ruchita Agarwal, an inspiring actuary with 3 years plus of experience. She doesn't look that old. Yeah? And she's working on employee benefits domain in an actuarial company in Mumbai. And she's already had an experience with 1000 plus clients over the span of these 3 years, where she's looking into the quantity, quantify and manage the risk and uncertainty faced by the organizations using statistical, financial, and mathematical approach. I know it's all very heavy. I'm sorry for that. But then now, अब रुचिता हमसे और आपसे जो बात करने वाली हैं, that will be very purely very simple and शायद उस लैंग्वेज में बात करेंगी जो उनके एक्चुअरीज वाले लैंग्वेज से बहुत अलग होगा. आइए समझते हैं रुचिता से. रुचिता, वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Really good that you could find time for us. And just to tell everyone else, Ruchita is working from Siliguri at the moment because of the COVID scenario for a Mumbai-based actuarial firm. Along with that, she is a fitness freak. She studies during the late nights and she loves pet animals. All right. So these are things which we have searched from other places. Ruchita, please tell everyone something about you, a little more about you. Yes, sure. Yes, First of sure. all, First thanks of for all, thanks having for me. having me. Thank you. My Thank you. voice Pleasure My is is all mine. voice is echoing. echoing. No, it's 100% perfect. Actually, I'm Actually, able to I'm hear my able to voice hear my again. voice again. That is so good. Let me just remove Let my me just earphones. remove my earphones. Yeah, better. Yeah, Yes. better. Yes. So tell Yes. our audience Yes. about yourself, please. Yes, so Yes, basically, so I'm a basically, BCom I'm a graduate BCom from graduate Calcutta from Calcutta University, University, and I'm and working in I'm a working in a consultancy firm in consultancy firm Bombay, in where Bombay, my where main my job is main to job is look to after the look employee after the benefits employee benefits. section. My voice is echoing. No? Yeah, yeah. Yes, Now it's good. a couple of them are saying that it is echoing. Is it still echoing? Yes, yes. अब ठीक है. अब it's normal. Please go ahead. हाँ हाँ हाँ. सो अभी फिलहाल मैं बॉम्बे में एक एक्चुअल कंसल्टेंसी में काम करती हूँ विच इज ट्रांस वैल्यू कंसल्टेंट, जिसमें मेरा पोर्शन है टू लुक आफ्टर द एम्प्लॉय बेनिफिट्स पार्ट. एम्प्लॉय Okay. बेनिफिट्स में आपका आ गया ग्रेचुइटी जैसे होता है, आपका पेंशन हो गया, लीव हो गया, तो मैं उसको लुक आउट करती हूँ. और मतलब डे टू डे काम में मुझे क्लाइंट के साथ डील करना पड़ता है, like depending upon Mm-hmm. what are their requirements, what do we require to give them a liability number, the projection number, and फिर queries Right. resolve करना. तो ऐसे ही चलता रहता है. 3 साल से अभी यही कर रही हूँ. And Okay, great. apart from that, I have managed to clear 6 people, 6 actuarial people. Wow. Yeah. So अभी Excellent. हाँ, तो अभी वैसे ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. नाउ आई एम करेंटली स्टडिंग एज वेल एज वर्किंग साइड बाय साइड. So, रुचिता, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, we were told that actuaries is the most difficult subject to pursue, the most difficult profession to pursue. How do you think about it, or what do you think about it?
एक्चुअली ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस, मतलब इट हम्म डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, उनका इंटरेस्ट क्या चीज में है। जैसे बचपन से आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, तो बट हम्म ऐसा भी नहीं कि एक्चुअली इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स ही इम्पोर्टेंट होती है, कैलकुलेशन तो कंप्यूटर ही करता है, मेन पार्ट इज द राइट एनालिटिकल स्किल्स करेक्ट which करेक्ट which takes over. So वही है, अभी अगर हम बचपन में कोई नए क्लास में शिफ्ट होते हैं, अगर क्लास 9 से 10 में शिफ्ट होते हैं, और अगर हम हम्म मैथ्स का बुक खोल के देखते हैं, जिस सपोज एलसीएम एचसीएफ ही हो, तो एवरीथिंग सीम सो अब्सर्ड कि क्या है ये, नोटेशंस क्या है एंड ऑल। बट जैसे जैसे हम ए बी सी डी उसका पकड़ते, देन इट सीम्स क्वाइट easy, and we are comfortable with that. The same is with my profession as well. इनिशियली जब मैंने बुक खोला तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था, नोटेशंस एंड ऑल, बट जब मुझे समझने आने लग गया तो इट बिकम सो फैसिनेटिंग। सो इट इज रेजोनेटिंग विद अस, यू सी। कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। हम लोग जब क्लास 10 का बोर्ड्स देने वाले थे, बहुत टेंशन में थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। बट देन द मोमेंट वी क्लियर्ड द पेपर्स, इट वाज लाइक yeah, very very आज ही क्लास 10 natural के that okay. एग्जाम्स आउट हुए आईसीएसई के। yeah, so अब लगता है कि बहुत आसान था, यू नो। सो द सेम वे, बिकॉज यू क्लियर्ड 6 पेपर्स, आपके लिए ये सब बहुत आसान है। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने सिर्फ शायद उसका स्पेलिंग भी नहीं बोल पाएंगे। ओके, सो वी आर मूविंग विथ आवर सब्जेक्ट टुडे। रुचिता, हमें थोड़ा सा बताइए इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि ये आपका एक्सपर्टाइज है, आपका सब्जेक्ट मैटर है। तो क्या आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहोगे इस चीज के बारे में? हाँ श्योर। सबसे पहले इंश्योरेंस इंश्योरेंस टर्म का मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस एक पर्सन इसीलिए लेता है ताकि वो फ्यूचर की अनसर्टिनिटी, फ्यूचर के रिस्क को मिनिमाइज कर पाए। ये चीज राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सब मतलब कि माइंड में सेट होनी चाहिए। देन मूविंग ऑन, राइट फिर हम आगे बढ़ते कि हमें किस टाइप का इंश्योरेंस करवाना है। इट कैन बी अ लाइफ इंश्योरेंस, इट कैन बी अ हेल्थ इंश्योरेंस, इट कैन बी इंश्योरेंस ऑफ आवर कार, it can be insurance हम्म of theft, fire, etc, हम्म etc. But the basic point to first and foremost point is to identify your needs, identify your goals कि आपको चाहिए क्या उस प्रोडक्ट से। ठीक है। सो मीन्स क्या हम लोग इस चीज को इस हिसाब से बोल सकते हैं कि हमें जो भी चीज बहुत प्यारी लगती है, हमें शायद उसका इंश्योरेंस करवाने की जरूरत है। हो सकता है वो हम खुद हो, या फिर हमारी फैमिली हो, या फिर हमारी गाड़ी हो, घर हो। यस यस यस। ओके, तो आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है खुद का? हाँ मेरे पास इंश्योरेंस है, बिकॉज टाइम टाइम किसी के लिए फेवर नहीं देता, अनसर्टेनिटी सबके लिए, रिस्क सबके लिए, सो आई ऑल्सो एक्चुअरीज हैव। के लिए भी होती है क्या अनसर्टेनिटी? Obviously, we can try to predict we can try to calculate the future risk, but we cannot see the future exactly. राइट राइट Yes, राइट। yes. So, ओके, तो आपने भी इंश्योरेंस करवाया हुआ हाँ है। हाँ, तो yes, yes. और भी कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को उस इंश्योरेंस के बारे में? ये श्योर। जैसे मेरे पास जो इंश्योरेंस मेरी स्पेसिफिकली है, एक है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, विच इज अ रियली इम्पोर्टेंट टूल आज के दिन पे, क्योंकि हम्म एट अ यंगर एज यू कैन गेट द एडवांटेज ऑफ द प्रीमियम। यंगर एज हम्म। में आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है, सिंस अपनी मोर्टिलिटी के चांसेस कम क्योंकि होती है, मरने का चांस कम है। मरने के चांस कम होते हैं। हाँ, आज आप हम्म 50 इयर्स के पर्सन से बोलो और एक 25 के बोलो, तो प्रीमियम में काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट टू विद सब्सटेंशियल कवर। मैं अपनी पीस ऑफ माइंड में हूँ कि चलो ठीक है अभी। हाँ। एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी हम्म। इम्पोर्टेंस मुझे इस पैंडेमिक में पता चली। बहुतों नो, को के साथ वैसा ही हुआ है। आपकी आवाज भी ऐसा हो चली जाता गई है है। कि अपने पास लाइफ इंश्योरेंस है। हाँ, अभी आ रही। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। हाँ हाँ। तो अभी पैंडेमिक में लाइफ इंश्योरेंस सबके पास है। मैं टर्म ले लूँ, मैं कोई भी ट्रेडिशनल प्लान ले लूँ, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँ, बट उसका क्लेम तो मैं एक सर्टेन अमाउंट टाइम के बाद ही कर पाऊंगी, या तो लाइक राइट। मैच्योरिटी पे या।
आपकी आवाज फिर से चली गई। कर रहे। हाँ जस्ट सेकंड। हाँ अब आ रही है। हाँ जी, परफेक्ट। हाँ, तो आज पैंडेमिक के टाइम पे मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जो मेरे रिलेटिव, जो मेरे जान पहचान इन लोग हैं, एडमिट। शायद आपके पास में कोई कॉल आ रहा है पीछे से जिसके कारण ये हो रहा है, राइट? नहीं नहीं, नो वरीज, वो हो ही सकता है। हाँ हाँ। सो वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि जैसे कि आज पैंडेमिक का सिचुएशन देख लीजिए। आज मेरे हम्म। रिलेटिव्स कितने जान पहचान के मैं जानती हूँ जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे राइट आपका बेसिक पर्पस आपका है कि इलाज कैसे करवाना है। आपको कैश फ्लो चाहिए। अगर आज कोई 30-40 ईयर्स का पर्सन है, मनी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन फ्रंट ऑफ देयर लाइफ। सो वो, राइट राइट हाँ, तो वो डेथ और मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा, इट कैन नॉट ओवरकम दैट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। सो उस टाइम पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस काफी काम आती है, जो कि इतने राइट सालों राइट। से पड़ी हुई थी, जिसका आप नो क्लेम बोनस है, जिसका आप नो क्लेम बोनस का हर साल फायदा उठाते थे। तो देख देख के खुश हो रहे थे, फायदा कुछ नहीं आ रहा था। तो राइट, बट देन मतलब वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर से ना मिलना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, तो उसी हिसाब से मेडिक्लेम का बेनिफिट ना लेना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, सो आपने खुद के इंश्योरेंस के बारे में बताया। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब कोई भी व्यक्ति एक इंश्योरेंस लेना चाह रहा है तब? इंश्योरेंस लेते टाइम पहले तो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अपना गोल सेट होना चाहिए कि हमें किस किस लिए चाहिए, क्या पर्पस के लिए चाहिए। इट कैन हम्म बी अपने फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, इन केस गॉड फॉरबिड अपनी डेथ हो जाए। इन हम्म। केस ऑफ, और ये हो सकता है कि अपने रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, वॉट एवर प्लानिंग वी वांट टू डू। या फिर जैसे कि एक को बताया कैश फ्लोज के लिए, अनसर्टेन टाइम पे हम्म। थेफ्ट हो गया, राइट एक्सीडेंट हो गया, कुछ कुछ भी हो सकता है उसके लिए। और कुछ लोग होते हैं जो एज ए इन्वेस्टमेंट टूल भी देखते हैं, जिसको टैक्स राइट। एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत लोग यूज करते हैं। तो वैसे काफी टाइप के रीजंस हो सकते हैं। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नीड्स, द नेक्स्ट कम्स द कॉस्ट। पॉलिसीज बहुत सारे अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, बट वो क्या आपके बजट को मीट करता है? जहाँ पे हम्म। आपका बजट और जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट मीट करे, वो एक पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो हमें राइट वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपकी नीड्स भी मीट हो रही हो। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका, अगर आप अपने बजट के हिसाब से कोई पॉलिसी चूज करो, तो उसका आपको कवर कितना मिल रहा है, उसका हम्म। मेच्योरिटी कितना मिल रहा है, फिर उसमें आपको प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है, वो बजट में भी फिट होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट इज दिस। थर्ड इज, फिर आप अगर कोई कंपनी में का पॉलिसी ले रहे हो, तो कंपनी कैसी काम कर रही है, दैट्स द इम्पोर्टेंट राइट थिंग ऑल्सो। क्योंकि लास्ट अभी 10-15 ईयर्स में इंडस्ट्री पहले जैसा नहीं रहा है। अभी हम्म। देखिए तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत सारी वैरायटीज आ गई है। राइट तो राइट हमें ये सब चीज में नहीं बहना। हमें जो कंपनी जिससे हम ले रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा काम कर रही है। तो उसके लिए हम दो तीन चीजें देख सकते हैं, जैसे कि एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, कि हम्म। उसमें वो आप इंटरनेट पे कहीं पे भी जाओगे, मतलब कि इंटरनेट पे जाओगे आईआरडीए के वेबसाइट पे, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, विच इज हेड ऑफ आरबीआई, अपने बैंक्स को रेगुलेट करती है, वैसे आईआरडीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंपनी। तो राइट आप आईआरडीए के वेबसाइट में जाओगे, या तो आप उस स्पेसिफिक कंपनी के वेबसाइट में जाओगे, तो यू कैन चेक आउट फॉर द क्लेम सेटलमेंट रेशियो, विच इज बेसिकली द नंबर ऑफ क्लेम सेटल इन प्रपोर्शन ऑफ टोटल क्लेम्स रिसीव्ड। एक फैक्टर राइट ये हो जाता है। और दूसरा फैक्टर, अगर आप क्लेम सेटल भी कर रहे हो तो उसका क्वांटम क्या है, मतलब ऐसा नहीं हो कि छोटे क्लेम्स रह जाए, मतलब छोटे क्लेम्स हमने राइट। सेटल कर दिए और बड़े क्लेम्स दे आर नॉट पासिंग द बड़ा बड़ा करेक्ट क्लेम्स। करेक्ट सो दैट्स करेक्ट। ऑल द पॉइंट।
तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको IRDA के वेबसाइट में जाके आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। तो इट्स राइट। ऑलवेज बेटर टू डू योर ओन होमवर्क बिफोर, मतलब चाहे कितना ही कुछ बाहर से सुने या कुछ भी करे। 100%। सो अगर इसी चीज को आगे लेके चलें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, हमने आज तक सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में ही सुना है। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास में टोटल इंश्योरेंस का क्लेम आया, समझ लीजिए 100 करोड़ का, और उसमें से एक इंश्योरेंस का क्लेम था 90 करोड़ का जो हमने सेटल नहीं किया, और नहीं बाकी 10 करोड़ का क्लेम सेटल कर दिया, तो हमारा अमाउंट सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा नहीं होगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो अच्छा नहीं होगा। वैसे ही क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी एक चीज होती है जिसे हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हाँ, हमने बहुत सारे क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है जो छोटे छोटे हैं, तो उस केस में भी हमारा केस भी उनमें से एक हो सकता था। या तो इस हिसाब से इन सारी चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए रुचिता, बहुत बार हमने ये भी देखा है कि हम खुद के फॉर्म्स तक पे सिर्फ साइन कर देते हैं और उसमें कुछ भी फिल नहीं करते हैं, कोई तीसरा ही व्यक्ति उसे फिल कर रहा होता है। कितना सही है ये? देखा जाए तो इट्स वेरी रॉन्ग एक्चुअली में। आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, भले वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट हो, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू फर्स्ट रीड योर पॉलिसी, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू टेक इंचार्ज ऑफ इट। आपका राइट। सिग्नेचर है, मतलब आपने अप्रूवल दे दिया, दैट्स इट। तो हम्म। पॉलिसी साइन करने से पहले रीड इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्चुअली में पता होना चाहिए। आज बोलते राइट। हैं कि राइट। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे डेथ पे मिल जाएगा, इतना कवर है, बट इट्स नॉट एक्चुअली द केस। मतलब अगर इन केस आप बंजी जंपिंग करते टाइम आपको कुछ हो गया या फिर आपने हम्म। सुसाइड कर लिया, तो फिर उस केस में वो वॉइड हो जाता है। तो राइट। अब राइट। अभी अभी मैंने रिसर्च किया इसलिए मुझे पता है। अभी कोई अगर आपको बाहर वाला आदमी आके बोले कि हाँ आपको इतना कम प्रीमियम में इतना कवर मिल रहा है एंड टेक दिस पॉलिसी, यू विल टेक एंड यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड कि हाँ आई एम सिक्योर्ड, मेरा मर्जी, अब मैं यहाँ से कूदूं मैं वहां से कूदूं, बट इट्स नॉट एक्चुअली द केस। You should know राइट। राइट। know what is actually in the policy. राइट। सो इट इज लाइक हमने बहुत सस्ते में एक गाड़ी खरीद ली, लेकिन उस गाड़ी के अंदर इंजन नहीं था। सो उस गाड़ी का हमारे लिए सिर्फ इतना ही काम है कि हम उसमें बैठ के अपनी सेल्फी ले सकते हैं, दैट इज इट, जा कहीं नहीं Yes, सकते हैं yes, उससे। yes. ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस समय ध्यान रखें कि हम पॉलिसी पेपर्स जब साइन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या क्या डिटेल्स भरी जा रही है, क्योंकि ज्यादातर टाइम्स ये देखने को मिला है कि सिर्फ पॉलिसी सबमिट कर देने के लिए, पॉलिसी इशू करवा लेने के लिए बहुत सारी डिटेल्स नहीं भरी जाती हैं, या फिर गलत डिटेल्स भर दी गलत जाती हैं। भरी जाती है, तो यस। क्या होता है उस केस में रुचिता, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें सबको तो? मोस्ट अगर ऑफ द मैंने अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में गलत डिटेल्स डाल दिया, कुछ डिटेल्स नहीं बताया जो बताना चाहिए था, तो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर आर हाई चांसेस कि आपकी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगी, आपने जो ओके। क्लेम किया, बिकॉज ऑफ द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। राइट। लाइक हाँ, सो अगर सपोज कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसमें एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है स्मोकर नॉन स्मोकर का। नाउ राइट। हाँ, अगर स्मोकर और नॉन स्मोकर के प्रीमियम में डिफरेंस होता है, थोड़ा डिफरेंस 20-30% का डिफरेंस आ जाता है अपने। अगर आप अभी प्रीमियम बचाने के लिए इफ यू से कि हाँ कि वी आर नॉन स्मोकर एंड वी जस्ट फिल अप द फॉर्म एंड ऑल, वी डोंट वांट दिस फ्लैग, सो अभी तो आपकी क्लेम पास हो जाएगी, बिकॉज क्लेम बेचते टाइम दे डोंट सी ऑल दिस कि दे वांट टू पॉलिसी पास हो जाएगी। हाँ हाँ पॉलिसी पास हो जाएगी कि हाँ सामने वाला भी हम्म। देखता है कि हाँ आई गेट कवर्ड इतना। बट राइट। जब जरूरत के टाइम पे इंश्योरेंस बनाते ही क्यों है, ताकि फ्यूचर का हम लोग रिस्क मिनिमाइज कर सके। जब अपने पास वो पीस राइट। ऑफ माइंड ही नहीं रहेगा, जब अगर कल को मेरी डेथ हो जाती है और मुझे मेरे फैमिली को वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा,
तो व्हाट्स द हम्म। यूज ऑफ पेइंग दैट प्रीमियम, एंड इज इट मतलब कि इज इट वर्थ इट टू हाइड दोस फैक्ट? मतलब अभी आपको उतना प्रीमियम देने में मे बी इनिशियली दुखता है या फिर होता, बट इज इट वर्थ कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा? सो राइट राइट राइट, सो इट इज बेसिकली अबाउट फ्रेंड्स दैट, सोच लीजिए मैंने खुद के लिए एक इंश्योरेंस किया। मेरा वजन है 120 केजी और बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से 60 केजी होना चाहिए। मैंने पॉलिसी पेपर्स में एप्लीकेशन में 60 केजी लिख दिया। आज की डेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, शायद बिना किसी इश्यूज के मेरी पॉलिसी इशू हो जाएगी। बट देन मैं अगर 20,000 रुपए हर साल उस पॉलिसी में प्रीमियम पे कर रहा हूं अगले 20 साल के लिए, यानी कि 4 लाख रुपए मैंने कंपनी को दे दिए। और 20 साल के बाद में जब मेरा देहांत हो जाता है किसी भी कारण से, और इंश्योरेंस कंपनी उस समय ये ढूंढ के निकालती है कि अरे इस व्यक्ति की का वजन तो इतना था और इस व्यक्ति का डेथ भी आज इसी कारण से हुआ है, ओवर वेट के कारण से हुआ है, और वो उस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। तो सोचिए मेरी फैमिली जिनको मैं सुरक्षित रखने के लिए वो इंश्योरेंस कर रहा था, उस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है। और अब तो मैं भी नहीं हूं। इससे बढ़िया तो शायद वो 20-20 हजार रुपए हर साल में मेरे फैमिली को खर्च करने के लिए देता, तो वो ज्यादा खुश होते। पैसे भी दे दिए, इंश्योरेंस का क्लेम भी नहीं मिला। सो ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हम लोग कोई भी ऐसा डिटेल हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी में ना डालें जो सही नहीं है, ये सोच के कि अरे चलिए आज तो हमारा काम जल्दी हो जा रहा है। नहीं, हमें आज जल्दी काम नहीं करवाना है। हमें ये इंश्योर करना है कि जिस दिन हमारे फैमिली को उस पॉलिसी को क्लेम करने की जरूरत पड़े, उस दिन उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे मैं रुचिता आपको बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर मई 2020 में मैंने मेरी वाइफ को बगल में बैठाया एंड उनको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था कि ये देखो ये मैंने पॉलिसी किया हुआ है, ये इतने लाख का है एंड ऑल दोस्तों। तो अगर कुछ हो जाता है तो आपको ये फॉर्म साइन फिल करना होगा एंड इसके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। 2-4 मिनट बहुत चुप्पी रही चारों तरफ, और उसके बाद में मुझसे पूछा गया आप ठीक तो हो ना, है ना। सो ये हम सबके साथ में होता है कि हम जब भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, हमारी तरफ ऐसी नजरों से देखा जाता है कि पता नहीं हमने क्या गलत कर दिया। लेकिन इस स्टिग्मा को हटाना जरूरी है। हमें बहुत जरूरी है कि हमने एक पॉलिसी ले ली और हमारी फैमिली को नहीं पता है उसके बारे में। क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे घर पे आके मेरे को क्लेम सेटल करके ऑब्वियसली देगी? सो तो क्या फायदा हुआ मेरा वो पॉलिसी लेने का जब मेरे परिवार को उसका बेनिफिट ही नहीं मिला। एग्जैक्टली। यस। रुचिता, गेस्ट जो भी ऑडियंस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी सवाल है रुचिता के लिए तो प्लीज लीव इट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड रुचिता को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस सवाल का जवाब दे। और क्या क्या चीजें, क्या क्या किस किस तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं रुचिता, क्या आप सबको बताना चाहोगे उन चीजों के बारे में? ये श्योर। इंश्योरेंस, अभी अगर लाइफ इंश्योरेंस का स्पेसिफिकली बात करें तो ब्रॉडली तीन टाइप के प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में। एक होता है अपना इंडोमेंट पॉलिसी, एक होता है यूलिप हम्म। पॉलिसी, और एक होता है टर्म पॉलिसी विच नाउ डेज इज वेरी पॉपुलर। सो राइट। तीनों का बेसिक डिफरेंस मैं समझाती हूँ। इंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि इफ अ पर्सन इज अ 30 ईयर्स का एक पर्सन है, ही वॉन्ट्स 20 ईयर्स तक का कवर, हाँ 20 साल का कवर। हम्म। तो अगर 20 साल के कवर में उनको कुछ हो जाता है तो उनको वो क्लेम, दे कैन गेट द क्लेम। और अगर नहीं होता है तो 20 साल बाद दे विल गेट द अमाउंट, लमसम जो भी होता है अमाउंट मिल जाएगा आपको। ये होता है इंडोमेंट पॉलिसी विच इज ट्रेडिशनल पॉलिसी जो ज्यादातर चले आ रही है। ठीक यूलिप है। इज ऑल्सो सेम एज, ऑलमोस्ट सेम एज द इंडोमेंट पॉलिसी, बस इसमें फर्क क्या होता है कि दे जो, सिंस एज द नेम सजेस्ट यूनिट लिंक प्लान पॉलिसी,
तो इसमें क्या इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है आपका, वो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन सेफर इंस्ट्रूमेंट, दे इन्वेस्ट इन मार्केट, अपना निफ्टी या जो भी उसमें मार्केट में दे स्पेंड। सो इसमें कुछ गारंटीड रिटर्न्स आपके नहीं लिखे रहेंगे पॉलिसी बॉन्ड में। एक मिनिमम सम अश्योर्ड होगा, उसके ऊपर जा भी सकता है और उसके नीचे नहीं जा सकता, बट कुछ गारंटी नहीं होगा। सिंस मार्केट इज वॉलेटाइल, इट कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। प्लस दे चार्ज सम मैनेजमेंट चार्ज, क्योंकि इसमें दे हैव फंड मैनेजर हैज टू बी एक्टिव, राइट। रेगुलर देखना पड़ता है। तो इसमें इंडोमेंट से क्या है कि कोई गारंटी भी नहीं रहती आपकी मैच्योरिटी बेनिफिट पे, और दे यूलिप में। चार्ज कमीशन यूलिप में, हाँ और जी। प्लस दे चार्ज कमीशन एज वेल, मैनेजमेंट फंड हम्म। मैनेजमेंट चार्जेस काफी होती है। तो ये तो राइट। इंडोमेंट और यूलिप में क्या है कि आपको डेथ कवर भी मिलता है, आपको मैच्योरिटी कवर भी मिलता है इन केस आपकी डेथ नहीं हो। तो अगर 20 साल का राइट। कवर ले रहे हैं, अगर 20 साल के हम्म। बीच में आपको कुछ नहीं हुआ, तब भी आपको मिलेगा, राइट। मैच्योरिटी पे भी मिलेगा। तो वी गेट ए डुअल बेनिफिट। अब टर्म राइट। इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन आज 30 इयर्स का है, इफ दे टेक अ पॉलिसी ऑफ 20 इयर्स, सो व्हाट हैपेंस कि इन केस ही द पर्सन डाइज इन दिस 20 ईयर, ही विल गेट द क्लेम। अगर वो राइट। नहीं मरता, मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलता। बट ये द तो लॉस हो गया। हाँ, ये तो लॉस हो गया। तो बट द प्रॉब्लम लाइज हियर, इंश्योरेंस का फिर हम लोग बेसिक ही भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस इज नॉट अ टूल फॉर इन्वेस्टमेंट टू गेट द करेक्ट। मनी बैक। इट्स अ थिंग फॉर टू प्रोटेक्ट टू मिटिगेट द फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर राइट। अनसर्टेनिटीज। राइट। सो राइट। अगर मैं अभी देखने में तो इंडोमेंट एंड यूलिप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। टर्म इज लाइक डेथ के लिए कौन पैसा लेता है, एज यू सेड कि डेथ के लिए इंसान मरने के लिए थोड़ी सोचता है। हाँ जी। हाँ। राइट। तो राइट। वही, बट इसमें फिर अगर आपको कुछ दे रहा है तो आपसे पैसा भी उतना ही चार्ज करेगा। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू पे बिटवीन दीज टू थिंग्स। एंडाउमेंट एंड टर्म। एंड हाँ, इंडोमेंट और टर्म। राइट। सो बेसिकली स्पीकिंग, हम लोगों ने हमेशा इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस टूल के हिसाब से यूज किया है। एंड वो इसलिए भी यूज किया है क्योंकि जिस समय इंश्योरेंस शुरू हुआ था, उस समय और कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नहीं थे, ज्यादा कुछ नहीं था। बट देन आज जब हम लोगों के पास में और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है कि हम इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट टूल के हिसाब से यूज करें। अगर हमारे पास में एक स्पेशलिस्ट है जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है, तो हम क्यों ना उस चीज का इस्तेमाल करें। या ठीक है। सो अगेन, इंश्योरेंस, अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें, तो आज से कोई 12-13 साल पहले मैंने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया था खुद के लिए। टर्म इंश्योरेंस था वो उस समय। और उस समय मेरा प्रीमियम साल का आया था 4,200 रुपए। ठीक है जी। सो टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ता है। हम सभी को अगर इंश्योरेंस की जरूरत है तो हमें टर्म इंश्योरेंस की ही जरूरत है। बाकी जो चीजें हैं वो शायद हम लोग खुद की खुशी के लिए कर लेते हैं, बट देन हमें बहुत ज्यादा जरूरत उन चीजों की नहीं है। रुचिता, इसके साथ हमें ये भी बताएं कि जो यंग ब्रिगेड हैं, जो आपके समय के बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं बोलूंगा अब आपको, अब आप बहुत मैच्योर हो गए हैं, जो आपके समय के लोग हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आजकल के जनरेशन में क्या है कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट आवर मनी। मनी हम्म। काफी हार्ड वर्क करने के बाद अर्न होता है, स्पेशली एट अ स्टार्टिंग एज, जब हमने कमाना जस्ट राइट। स्टार्ट किया है। तो इसमें अगर आपको खुद का भी रिसर्च करना है और आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। आज मैं अगर फॉर से मैं हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लूँ, आज मैं 30 इयर्स की हूँ। अगर मैं नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए एक इंडोमेंट पॉलिसी लूँ, तो और सपोज कि 20 लाख का अपना सम ये कवर है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 20 लाख मिलेगी,
और अगर मतलब अगर मेच्योरिटी हो जाती है तो एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, तो 30 लाख रुपीज मिलेगी लेट्स से। तो आज अगर आप 1 लाख प्रीमियम दो तो जाके आपको 30 years बाद आपको 20 लाख का प्रीमियम देने पे 30 lakhs मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है। वही अगर आप टर्म इंश्योरेंस लो तो आपको जस्ट 1/10 ऑफ द प्रीमियम पे करना पड़ता है, दैट इज 10,000 फॉर अ डबल कवर, फॉर मतलब 3 times cover for 1 crore cover. So that's राइट the difference between, and now since you have a peace of mind कि चलो मेरी फैमिली सिक्योर है, मेरे डिपेंडेंट्स मेरे 30 years की एज में वी आर प्लानिंग चिल्ड्रन, सो यू नो कि हाँ मेरी कुछ भी हो मुझे तो वो करियर उनका स्टॉप नहीं होगा, वो आगे चलता रहेगा। तो उसके बाद द रिमेनिंग 90,000 वी कैन इन्वेस्ट इन समथिंग विच इज यूजफुल। मतलब कि अभी क्या है आजकल के, जब हम लोग बिजनेस करियर स्टार्ट करते हैं देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, अपना एजुकेशन खर्चा हो गया, अगर बिजनेस हो तो बिजनेस सेटअप कॉस्ट होता है, अगर सर्विस हो, आज कोई फोटोग्राफी देख लो, आज कैमरा भी लेने जाओ, सो there is a lot of cost, there is a opportunity cost, the money you had invested मतलब वहाँ पे पॉलिसी में, the money, the same money if you had invested somewhere else, how much return you could have generated, जस्ट बिकॉज अपने दिमाग में वो नोशनल रहता है कि नहीं मेच्योरिटी पे पैसा लमसम मिलना ही चाहिए, वी आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा 90,000 bucks। राइट 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 हाँ, राइट सो राइट दैट वी शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट कि अगर आप अगर मैं बोलूँ कि अगर 90,000 अगर आप आज SIP में भी डालते हो तो 5 4 for 30 years के बाद यू विल हैव एटलीस्ट 3 and 3.5 crore, which वाओ हाँ सो दैट इज द otherwise पावर ऑफ कंपाउंडिंग that's यू the नो power of compounding, the करेक्ट longer। करेक्ट करेक्ट और यंगस्टर के पास एडवांटेज ये है कि they have the advantage of time, the टाइम earlier you start the more you can grow। राइट सो एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑन दिस रुचिता दैट हमारे यहाँ आज की डेट में यंगस्टर्स ये सोचते हैं नहीं आज कमाना शुरू किया है पहले ऐश कर लेते हैं यू नो ठीक है सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड 50-30-20 रूल विच सेज कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर रहे हो आज तो उसमें से 50,000 रुपीज आपके नीड्स के लिए होनी चाहिए आपका रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट मोबाइल एंड जो बेसिक चीजें हैं जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा उसके लिए 50,000 रुपए होना चाहिए 30,000 रुपीज आपके वांट्स के लिए होना चाहिए अब वो वांट्स हो सकता है 4 बार मूवी हॉल में जाना है हो सकता है कहीं पे पार्टी करने जाना है कहीं पे खाने पीने जाना है दोस्तों के साथ घूमने जाना है वेकेशंस पे जाना है और दीज आर वांट्स जो हम चाहते हैं खुद के लिए डिजायर करते हैं एंड बाकी जो 20,000 है वो इन्वेस्ट होना चाहिए क्यों क्योंकि आज सोच लीजिए हम लोग 20 25 या 30 साल की उम्र से कमाना शुरू करते हैं काम करना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र में जाके हम रिटायर होते हैं तो यानी कि 30 35 साल की काम करने के बाद में हम रिटायर होते हैं और आज की डेट में एक रिटायर्ड आदमी रिटायरमेंट के बाद में एक व्यक्ति 25 से 30 साल की जिंदगी और जीता है तो हाँ यानी कि ये 30 35 साल में हमें उस 30 35 साल के लिए भी इंतजाम करके रखना है यू नो सो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट अगर हम लोग मान के चलें तो 50-30-20 रूल को अगर हम लोग साथ में लेके चलें तो शायद हम लोग ऐश भी कर पाएंगे और कैश भी कर पाएंगे या एब्सोल्युटली आई एग्री। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने हर डिमांड्स को सप्रेस कर रहे हैं, इंस्टेड करेक्ट स्टार्ट सेविंग स्मॉल, इवन इफ यू राइट स्टार्ट, मतलब कि ऐसा नहीं, मतलब इनिशियली जब हम लोग अर्न करना स्टार्ट करते हैं वी डोंट हैव सब्सटेंशियल कैश फ्लो विद अस, सो राइट इवन जब मेरी फर्स्ट जॉब सैलरी जॉब मिलना स्टार्ट हुआ था, मतलब कि जॉब मिला था लास्ट 3 years पहले, तो मतलब बॉम्बे इज एन एक्सपेंसिव सिटी कंपेयर टू सिलीगुड़ी। हाँ, एनी डे वहाँ पे 1 BHK का यू हैव टू पे मिनिमम 30,000, मतलब इट्स जस्ट द करेक्ट स्टार्टिंग रेंज, देयर इज नो राइट कॉन्सेप्ट ऑफ PG हॉस्टल, एवरीवन इज वर्किंग देयर, सो राइट it become very difficult to save, but still I started with small, I started with 2,000 rupees only monthly,
Okay. एंड Okay. दैट टू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग वीकली में। आजकल सारे एप्स Wow. अवेलेबल है। हाँ, तो Hmm. क्या हो जाता है ना कि वो अपने आप एवरेज आउट हो जाता है। अगर आप कोई Right. मार्केट में एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, इनडायरेक्टली एक तरीके का मार्केट में इन्वेस्ट करना हुआ। Correct. तो अगर Correct. आप वीकली करो तो आपका एवरेजिंग का चांसेस ज्यादा अच्छा होता है। तो मैंने वीकली स्टार्ट किया था। नाउ माय पोर्टफोलियो इज 35%। अब क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे भी वो रोका नहीं था, मैंने Very वो nice. कंटिन्यूस रखा। Right. Right. मैंने वो Right. कंटिन्यू रखा। तो फिर वो जो मैंने खरीदा था इतने 3 साल से, जो अक्यूमुलेट किया था, आज मुझे वो रिटर्न देना स्टार्ट कर रहा है। तो Correct. दैट्स बिकॉज आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन अ अर्ली एज। वही अगर आज कोई कोविड का सिनेरियो देख के सितंबर या दिसंबर में मतलब स्टार्ट किया होता, तो मतलब मार्केट भरा है नो डाउट, बट हार्डली 10-15% का रिटर्न आता। सो Right. दैट्स Right. द 100%. डिफरेंस। So that is basically, it is said that do not try to time the market, put time into the market. So it is basically about how long one person can be there in the market. That is what decides how successful can one be. I'm reading a book right now, The Psychology of Money by Morgan Housel, where he talks कि आपका और मेरा सक्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपका और मेरा सक्सेस इसलिए है क्योंकि हम लोग लकी हैं। ठीक है जी, हमारा इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस इन अ स्पर ऑफ अ सेकेंड द मोमेंट वी टेक वन रॉन्ग डिसीजन, बट देन बिकॉज वी हैव स्टेड पुट फॉर, लाइक ही इज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ वॉरेन बफे। तो वो बोलते हैं कि 10 साल की उम्र से 89 ईयर्स की उम्र तक अगर एक आदमी, यानी कि 79 ईयर्स के लिए अगर एक आदमी इन्वेस्ट करके रख सकता है पैसे, पेशेंस रख सकता है, तो उसका कंपाउंडिंग नहीं होने का कोई भी कारण नहीं है। So that is the same thing. Let us not sacrifice our today for tomorrow, but then with today we will also have to think about tomorrow. Yes, yes. So that is how I think is life. Any parting words from you, Ruchita? It has been really nice talking to you and knowing so much about insurance. अगर आप ऑडियंस के लिए कुछ भी और बताना चाहते हैं, कुछ टिप्स देना चाहते हैं, तो प्लीज। First of all, thank you so much, Hemant, for having me, for giving me this platform to speak, to spread some financial awareness. इससे मतलब हमारे जैसे यंगस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड दैट टू वी फील कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। सो मेरे मेरे लाइक मेरी बस यही है एडवाइस कि मतलब जो भी आप करो, मतलब जो भी आप, इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अभी आपको वैल्यू में भी पता नहीं चलेगी, बट फ्यूचर जैसे आएगा आपका, you'll गेट टू नो मतलब कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अभी मे बी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, बट विथ टाइम इट गेट्स इंक्रीजिंग। सो एक तो वो चीज है, बी माइंडफुल अबाउट योर नीड्स। एंड सेकेंड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिकॉज अभी आपके पास करेक्ट। है, पेरेंट्स है, कोई है बड़ा देखने के लिए घर पे, तो फिर अभी चल जाता है। बट अभी से अगर 5 से 10 साल बाद देखो, तो यू विल हैव सम डिपेंडेंस, you might get married, you will have children, so रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ खर्चे भी जाती बढ़ है, जाएंगे। खर्चा भी राइट। बढ़ता राइट। ही है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड अनसर्टेनिटी के लिए आपके पास एक कुशन भी रहेगा। Correct, correct, correct. And more important than anything, probably Ruchita is the discipline. यस, मैं जैसे ही पेशेंस। यस पेशेंस, यस। एक और बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसमें ये कहा जाता है कि आपका जो भी इनकम है उसका 10% सबसे पहले आपको खुद के लिए रखना चाहिए। अब खुद के लिए रखने का मतलब कि जैसे ही आपने 10,000 रुपए कमाए, उसमें से 1,000 रुपए निकालिए और आपके वॉलेट में डाल दीजिए, और उसको वॉलेट से निकलने मत दीजिए। कुछ महीनों में आपका वॉलेट बहुत मोटा हो जाएगा, एंड दैट इज योर अचीवमेंट। यस, So, एब्सोल्युटली। so that is what, with all the enjoyment, let us also look into our futures.
And with people like Jeff Bezos who are now going to another world, another planet, probably by the time you all grow up, we all grow a little more older or matured, we will be there in another planet talking to each other. Yes, thank you so much, Ruchita. It was really nice talking to you, and hope we've been able to help the audience in understanding about insurance and themselves. Thank you. Thank you, Ruchita. Bye Thank you bye. so much, Hemant. Bye. Bye bye.